Hello and welcome to our new video on geometrical properties of circle that is included in our class 10th mathematics. So here we will solve some of the questions related to angles in the segment. So let's start with our question number 1. So in this question we have to find the value of A and B. So let's say we have two chords x and y. xy is one chord. Similarly, we have the chord a, b. So the theorem that relates this question is such that if we have a circle and in this circle this is the chord, and if an angle is formed in the segment, major segment or minor segment, so these two angles are always equal. So we can also state this as butterfly property. So इस property के through जो है वो हमें यहाँ angle A और angle B को find out करना है. So हमें ये देखना होता है कि same chord के जो end points है, let's say these are end points A and B. So इन दो end points के through अगर same angle, दो different angles और more than two angles form होते हैं, so वो angles हमेशा आपस में बराबर होंगे. So these two angles जो मैंने यहाँ पे mark किए हैं वो हमेशा बराबर होंगे. Similarly, अगर इस end points के साथ अगर मैं एक और angle form कर दूँ, so this angle will also be equal. So in this way, we can assume this chord YB. So it's YB endpoint say we have an angle A and we have the same angle formed between with the endpoints of this chord YB जो कि यहाँ पर 27 form हो रहा है. So in this way A will be equal to 27 degrees, and in the same concept, if we can take XA as a chord, so इस AX chord की मदद से अगर हम देखें तो इस A और X end point से we have an angle B, and similarly इस A और X से we have an angle 30. So these two angles will be equal. So we have a correct answer. B is equal to 30 degree. So इस तरह से हमने question number 1 को solve किया with the property that the angles in the same segments are always equal. Now let's see question number 2. Question number 2 भी कुछ इसी तरह से solve होगा कि हम इन points को mark कर देते हैं. Let's suppose this is L, this point is M, this is N and this is P. So अगर हम L M को chord consider करें, so with the help of these two endpoints of the chord, we have an angle that is formed at D. ये जो angle D form हो रहा है यहाँ पर, इस angle D के जो end points हैं that are LM. इसी तरह से अगर हम इस 45 को देखें तो इस 45 की भी जो end points हैं angle के वो lie करें chords के end points के ऊपर. This means that this angle N and this angle P, these two angles are angles in the same segment according to the butterfly property. So D will be equals to 45 degree. इसी तरह से अगर हम NP को chord consider करें, so with this chord NP we know that the angle C is formed with the help of the endpoints NP. So angle C जो है वो equal होगा angle 20 के, because angle 20 के जो end points हैं NP और angle C के जो end points हैं वो भी same chord है NP. It's mean that C will be equals to 20 degrees. So in this way we have got our variables as D equals 45 and C equals 20. सेम प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं. सो इन क्वेश्चन नंबर 3 इस क्वेश्चन में हमारे पास एक फिगर मौजूद है. इस फिगर के अंदर हम वेरिएबल्स को मार्क कर देते हैं. लेट्स से दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C एंड दिस इज D. सो इस क्वेश्चन में हमें 3 वेरिएबल्स मालूम करने C, D एंड E. So सबसे पहले अगर हम C मालूम करने के लिए सॉल्व करें, so let's say this BD is a chord.
सो इस बी डी कॉर्ड के एंड पॉइंट से अगर हम देखें, सो इस कॉर्ड एंड पॉइंट्स ऑफ बी डी, तो इन दोनों पॉइंट से हमारे पास एक एंगल 58 फॉर्म हो रहा है, दैट इज बी ए डी, and similarly the angle C that is formed between BCD. So in this way angle BAD and angle BCD, these two angles are equal, that are angles in the same segment that are formed with this chord BD. So in this way the correct answer for C would be equals to 58 degrees. इसी तरह से अगर हम एंगल डी मालूम करने के लिए चलें, तो एंगल डी मालूम करने के लिए वी कैन टेक सी डी एज अ कॉर्ड. सी डी जो है वो हमारी एक कॉर्ड हो जाएगी, और इस कॉर्ड के एंड पॉइंट से अगर हम देखें तो वी हैव एन एंगल सी ए डी एंड एंगल सी बी डी. ये दोनों जो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं इस फिगर के अंदर, ये दोनों एंगल्स सेम कॉर्ड के एंड पॉइंट से फॉर्म हो रहे हैं. दिस मीन दीज आर द एंगल्स इन द सेम segment. So angle D will be equal to 41 degree in this question. So we have our in other variable, that is 41 degrees. Next we have angle E. So angle E मालूम करने के लिए we can take AC as a chord. इस AC chord को अगर हम लें तो इस AC chord से हमारे पास एक एंगल फॉर्म हो रहा है E, एंड सेम chord से हमारे पास एक एंगल फॉर्म हो रहा है 30. सो दिस AC chord से जो दो एंगल्स इक्वल होंगे, दैट विल बी ADC. एंगल ADC will be equals to एंगल ABC. ये दोनों एंगल्स जो है वो आपस में इक्वल होंगे, बिकॉज ये दोनों एंगल्स जो है वो सेम सेगमेंट्स के अंदर फॉर्म हो रहे हैं विद द कॉर्ड AC. सो आवर वेरिएबल E will be equals to 30 degrees. तो यहाँ हमारे पास करेक्ट आंसर आ गया फॉर ऑल दी वेरिएबल्स. Now let's see question number 4. इस क्वेश्चन में हमारे पास उसी तरह से तीन वेरिएबल्स मौजूद हैं, और इन तीन वेरिएबल्स में हमें इन तीनों वेरिएबल्स की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है. सो लेट्स स्टार्ट विद द सेम कॉन्सेप्ट दैट एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल. सो इन पॉइंट्स को अगर हम मार्क कर दें, फॉर एग्जांपल दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R एंड दिस इज S. So let's say RS is our chord. SR को अगर हम chord कंसिडर करते हुए चलें, so SR से हमारे पास दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं. वन इज द एंगल F एंड अदर इज द एंगल Q. सो इस कॉर्ड की मदद से जो दो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं जिसके एंड पॉइंट्स कॉर्ड के एंड पॉइंट्स के बराबर हैं, सो दीज आर S P R एंड S Q R. इन दोनों एंगल्स के जो एंड पॉइंट्स हैं, दैट आर द एंड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड SR. इट्स मीन दीज टू एंगल्स विल बी इक्वल. सो ये दोनों एंगल्स हमारे पास बराबर आ रहे हैं. F इज इक्वल टू 40 डिग्रीज. तो फर्स्ट वेरिएबल यहाँ से हमारे पास 40 डिग्रीज आ गया. इसी तरह से वी नो दैट ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. सो ये हमारे पास 85 डिग्री हो जाएगा. सो फॉर द वैल्यू ऑफ H हम 180 डिग्री में से 40 एंड 85 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो 180 डिग्रीज माइनस 45 माइनस 40. सो 180 में से इन दोनों एंगल्स को सब्ट्रैक्ट करके वी विल गेट H. This angle H will be equal to 55 degrees. So H हमारे पास आ गया 55 degrees. इसी तरह से अगर हम QP को chord कंसिडर करें, QP is our chord. So QP से जो हमारे पास दो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, that are angles in the same segment. So उन एंगल्स के नाम कुछ इस तरह से हो जाएंगे PSQ and PRQ. सो ये जो दो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं वो QP कॉर्ड से या PQ कॉर्ड से फॉर्म हो रहे हैं, जो कि आपस में बराबर होंगे. तो यहाँ हमारे पास एंगल H फॉर्म हो रहा है और यहाँ एंगल हमारे पास फॉर्म हो रहा है G. सो इन दिस वे
G will be equals to H, that is 55 डिग्रीज। तो यहाँ हमारे पास थर्ड वेरिएबल की भी वैल्यू आ जाती है 55 डिग्रीज। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को भी बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व करते हैं। सो लेट्स मार्क दिस पॉइंट A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। तो यहाँ हमारे पास तीन वेरिएबल्स मौजूद हैं A, B एंड C। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कंसिडर द कॉर्ड BC। इस कॉर्ड BC के अकॉर्डिंग हमारे पास जो दो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं विद द सेम एंड पॉइंट्स एज दिस कॉर्ड। सो वन एंगल इज BAC एंड द अदर एंगल इज BDC। ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे। दिस इज BAC एंड दिस इज BDC। तो ये दोनों एंगल्स जो है वो सेम सेगमेंट्स में सेम कॉर्ड से फॉर्म हो रहे हैं। दिस मीन्स दैट A विल बी इक्वल्स टू 32 डिग्रीज। तो हमारे पास फर्स्ट वेरिएबल इस तरह से फॉर्म हो गया। इसी तरह से इफ वी टेक AD एज अ कॉर्ड, AD को अगर हम कॉर्ड कंसिडर करें, सो विद द हेल्प ऑफ दिस कॉर्ड टू एंगल्स दैट आर ABD एंड ACD, ये दोनों एंगल जो है वो आपस में बराबर होंगे। डायग्राम के अंदर देखते हैं ABD इज दिस एंगल एंड ACD इज दिस एंगल। सो ये दोनों एंगल्स अगर बराबर हैं तो दिस मीन्स दैट वैल्यू ऑफ B विल बी इक्वल्स टू 80 डिग्रीज। तो ये हमारे पास वैल्यू ऑफ B आ गई। सो लास्ट जो हमारा वेरिएबल रह गया दैट इज C। सो C फाइंड आउट करने के लिए हम कुछ इस तरह से करते हैं कि अगर इस ट्राइंगल में हम ये एंगल मालूम कर लें बाय सब्ट्रैक्टिंग 32 एंड 80 फ्रॉम 180, तो ताकि हमारे पास जो थर्ड एंगल है ट्राइंगल का वो आ जाए। सो 180 में से 80 माइनस करते हैं और 32 को माइनस करते हैं तो वी विल गेट 68। सो ये एंगल हमारे पास हो जाएगा 68 डिग्री। सिमिलरली इस एंगल को मालूम करने के लिए वंस अगेन 68 को अगर हम 180 से माइनस करें तो हमारे पास इसका सप्लीमेंट्री एंगल आ जाएगा। सो 68 180 माइनस 68, तो यहाँ हमारे पास एंगल आ जाता है 112। बिकॉज ये दोनों एंगल स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं तो इन दोनों एंगल्स का सम भी 180 होगा। सो एंगल C इज सिंपल। हमारे पास ये जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है 25, 112 एंड एंगल C। सो C मालूम करने के लिए हम 25 और 112 को 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास एंगल C आ जाएगा। सो 180 माइनस 25 माइनस 112, सो द करेक्ट आंसर विल बिकम 43। हमने 180 में से 25 और 112 को सब्ट्रैक्ट किया तो एंगल C हमारे पास आ गया 43 डिग्रीज। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। क्वेश्चन नंबर 6 भी कुछ इसी तरह का है हमारे पास, तो उसको लेट्स सॉल्व करते हैं। सो सबसे पहले तो मैं इनको पॉइंट्स मार्क कर देता हूँ। लेट्स से दिस इज E, F, दिस इज G एंड दिस इज H। यहाँ हमारे पास तीन वेरिएबल्स मौजूद हैं X, Y एंड Z। सो अगर हम EF कॉर्ड को देखें, EF इज अ कॉर्ड और EF कॉर्ड की मदद से हमारे पास एक ये एंगल X फॉर्म हो रहा है and this angle Y is formed with the same chord. This means that X और Y दोनों आपस में बराबर होंगे। सो X और Y में से किसी एक को पहले हम फाइंड आउट करते हैं। सो ऑपोजिट एंगल यहाँ पर भी 96 आ जाएगा बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। सो एंगल Y सिंपल, 180 में से 50 और 96 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ Y। So 180 minus 50 and minus 96. So we will get Y is equals to 34. So Y की वैल्यू हमारे पास 34 आ गई। So in the same way, because EF जो कॉर्ड है जिसकी मदद से जो एंगल फॉर्म होगा EGF and EHF, तो ये दोनों एंगल जो है आपस में बराबर होंगे बिकॉज ऑफ एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। सो एंगल X की वैल्यू भी बिल्कुल सेम आएगी, दैट इज 34
डिग्रीज। सो एक्स और वाई हमारे पास कैलकुलेट हो गए इन दिस वे। सो अगर हम इस एंगल को फाइंड आउट करना चाहें तो हम 180 में से सब्ट्रैक्ट करके 96 को सब्ट्रैक्ट करके इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन पे जो दोनों एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं दैट विल बी सप्लीमेंट्री एंगल्स। सो यहाँ हमारे पास आ जाता है 84 डिग्रीज। एंड वन मोर थिंग, ये जो एंगल Z यहाँ फॉर्म हो रहा है हमारे पास जो डायग्राम में यहाँ एंगल फॉर्म होगा दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू Z, बिकॉज दीज टू एंगल्स आर फॉर्म विद द chord FH एंड एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर ऑलवेज इक्वल। सो Z मालूम करने के लिए वी विल सब्ट्रैक्ट 84 एंड 40 फ्रॉम 180, बिकॉज ट्राइंगल हमारे पास फॉर्म हो रहा है और दो एंगल्स गिवन है 84 एंड 40। तो अगर हम 180 में से इन दोनों को माइनस कर दें सो वी विल गेट Z इज इक्वल टू 56 डिग्रीज। सो हमारे पास तीनों वेरिएबल्स आ गए दैट आर X, Y एंड Z। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। सो इस क्वेश्चन में कुछ इस तरह से डायग्राम मौजूद हैं जिसमें कंप्लीट एंगल हमारे पास गिवन है 94 डिग्रीज एंड दीज टू साइड्स आर इक्वल। सो वी नो दैट अगर ये दो साइड्स बराबर है तो ये दोनों जो एंगल्स बनेंगे यहाँ पर ये दोनों भी बराबर होंगे। सो अगर ये दोनों एंगल्स अगर हम मालूम करना चाहें तो 180 में से 94 को माइनस कर दें सो हमारे पास रिमेनिंग टू एंगल्स आ जाएंगे इस ट्राइंगल के एंड हाफ ऑफ दिस एंगल दैट विल बी इक्वल टू 43। सो ये दोनों एंगल जो है वो 43 डिग्रीज के इक्वल होंगे, बिकॉज कंप्लीट ट्राइंगल जो है वो 180 डिग्रीज का होता है। तो ये एंगल हमारे पास आ गया 43 एंड वी नो दैट अगर हम इसको कॉर्ड कंसिडर कर लें ए बी, सो इस ए बी से हमारे पास एक एंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ 43 और एक एंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पर दैट इज एंगल टी। दीज टू आर द एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, सो अकॉर्डिंग टू दिस टी विल बी इक्वल टू 43 डिग्रीज। सो वी हैव आवर वेरिएबल जिसको हमने यहाँ फाइंड आउट किया। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास एक और प्रॉपर्टी सर्कल की अप्लाई हो रही है। तो वो प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से है कि अगर लेट्स से वी हैव अ सर्कल और इस सर्कल में हमारे पास अगर सेंटर मार्क्ड है सो दिस इज सेंटर ऑफ द सर्कल, और अगर हम एक कॉर्ड कंसिडर करें लेट्स से एक्स वाई इज द कॉर्ड, और इस कॉर्ड के जो एंड पॉइंट्स हैं एक्स और वाई, इन दोनों एंड पॉइंट से जो सेंटर पे एंगल फॉर्म होता है विद द सेंटर ऑफ द सर्कल इसे हम कहते हैं सेंट्रल एंगल। और अगर हम इसी कॉर्ड के एंड पॉइंट से सर्कल के सेगमेंट के अंदर कहीं पर भी एंगल फॉर्म कर लें सो दिस इज नोन एज एंगल इन द सेगमेंट। So the relation between the angle in the segment and the central angle is such that the central angle is double of the angle in the segment. So center angle जो है वो हमेशा segmental angle का डबल होता है। जिस तरह अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन 7 क्वेश्चंस किए एंगल इन द सेगमेंट के, इसी तरह यहाँ पर अब हमारे पास सेंट्रल एंगल मौजूद है दैट इज एंगल ए। सो ये जो सेंट्रल एंगल फॉर्म हो रहा है वो इन दो एंड पॉइंट से मिलके बन रहा है दैट आर ए एंड सी। एंड अगर हम इस एंगल बी को देखें दैट इज 46, सो ये जो 46 एंगल फॉर्म हो रहा है एट पॉइंट बी, इस एंगल के भी जो एंड पॉइंट्स हैं वो वही एंड पॉइंट्स हैं कॉर्ड वाले जो कि सेंट्रल एंगल के हैं। इट्स मीन इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है इट विल बी सच दैट कि अगर यहाँ 46 है so here we'll have the double of 46, so 46 multiplied by 2, the double of 46 will be equal to 92। so यहाँ जो हमारा एंगल बनेगा a की वैल्यू आएगी it will be 92 degrees। इन द सेम वे क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल सिमिलर है हमारे पास कि एंगल इन द सेगमेंट हमारे पास मौजूद है और सेंट्रल एंगल मौजूद है। सो अगर हम एंगल बी को नोट करें, एंगल बी जो है वो एंड पॉइंट्स ए और सी के दरमियान बन रहा है। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ जो ये सेंट्रल एंगल फॉर्म हो रहा है 84, इट इज फॉर्म्ड विद द सेम एंड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड ए एंड C. So the angle in the segment is half of the angle at the center. So B will be equals to
half of 84. So 84 का अगर हम half करें so we will get 42 degrees. So value of B is equal to 42. Now let's see question number 10. So question number 10 में भी हमारे पास एक chord मौजूद है AB और इस कॉर्ड ए बी के जो एंड पॉइंट्स हैं ए बी, इन एंड पॉइंट्स ए बी से हमारे पास एक एंगल सेगमेंट में फॉर्म हो रहा है दैट इज डी, और एक एंगल फॉर्म हो रहा है एट द सेंटर ऑफ द सर्कल दैट इज 88. And we know the relation कि segmental angle is equal to half of the central angle, so D will be equals to 88 over 2. So इस तरह से D की वैल्यू हो जाएगी 44. और now let's solve this variable C. So variable C find out करने के लिए अगर हम देखें so we know that OA is the radius of the circle and OB is also a radius of the circle. So अगर हम triangle OAB को solve करें so OAB में हमारे पास angle O is 88, एंगल्स A जो है वो C के इक्वल है, और अगर हम B को देखें तो ये एंगल B भी C के बराबर होगा because these two angles are formed opposite to two equal sides. So अगर हमें एंगल C मालूम करना है जो कि बराबर है तो इक्वेशन हमारी कुछ इस तरह से बन जाएगी C plus 88 equals to 180 degrees. So अगर हम 180 में से माइनस कर दें 88 को we will get 92 and इसका अगर हम डिवाइड बाय 2 कर दें so C हमारे पास इक्वल हो जाएगा 46 डिग्री के, तो ये एंगल भी 46 डिग्री हो गया. सो एंगल C हमारे पास इस क्वेश्चन में आ गया 46 डिग्रीज. क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं इसी तरह से. सो क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास एक लाइन है जो कि सेंटर से, एक कॉर्ड है जो कि सेंटर से पास हो रही है. इट्स मीन ए बी जो इस डायग्राम में हमारे पास गिवन है इट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल. डायमीटर मौजूद है हमारे पास और एक सेंट्रल एंगल फॉर्म हो रहा है एट पॉइंट ओ और द सेंटर ऑफ द सर्कल. तो जो 98 एंगल फॉर्म हुआ है ये सेंटर ऑफ द सर्कल पे फॉर्म हुआ है और इस एंगल के जो एंड पॉइंट्स हैं दैट आर द एंड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड ए सी. इसी तरह से अगर हम इस एंगल बी को देखें जो कि ई के इक्वल है तो ये एंगल बी भी एंड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड ए बी से फॉर्म हो रहा है. दिस मीन्स दैट कि जो 98 है इट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ दिस सेगमेंटल एंगल बी, और हमें पता है इसके दरमियान रिलेशन दैट सेगमेंटल एंगल इज हाफ ऑफ द सेंट्रल एंगल. सो 98 का हाफ इज इक्वल टू 49. सो यहाँ हमारे पास जो एंगल फॉर्म होगा इट विल बी इक्वल टू 49 डिग्री. सो इन दिस वे ई विल बी इक्वल्स टू 49. देन 98 को यूज करते हुए अगर हमें F निकालना है सो वी नो दैट ओ ए एंड ओ सी ये दोनों जो है वो रेडियस ऑफ द सर्कल है. एंड इफ दीज टू आर रेडियस तो दिस मीन्स दैट कि ये वाले दोनों एंगल्स भी आपस में बराबर होंगे, एंगल F and this will also be equal to angle F. So angle F मालूम करना है तो हम 98 को 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 180 माइनस 98. सो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 82 जो कि ये दोनों एंगल F है. तो इसे हम डिवाइड कर देते हैं या हाफ कर देते हैं तो हमारे पास F इक्वल हो जाएगा 41 डिग्रीज के. सो यहाँ हमारे पास दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज आ गई. इन द सेम वे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 भी सॉल्व हो जाएगा तो उसको सॉल्व करते हैं. So in this question, as we can see, angle G is the central angle and angle C is the angle C is the segmental angle. Segmental angle जो है वो central angle का हाफ होता है. तो अगर हमें G मालूम करना है जो कि सेंटर पे फॉर्म हो रहा है so G will be equals to double of 38. So 38 times 2 will be equals to 76. So G हमारे पास इक्वल हो जाएगा 76 डिग्रीज के. अगर हमें H मालूम करना है सो वंस अगेन ओ ए एंड ओ बी
ये दोनों हमारे रेडियस ऑफ द सर्कल हैं, सो दिस विल बी h एंड दिस विल बी ऑल्सो इक्वल टू h। तो h मालूम करने के लिए 180 में से अगर हम 76 को माइनस करते हैं तो हमारे पास ये दो एंगल्स आ जाएंगे जो मैंने h मार्क किए हैं। हाफ करने से हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी। सो सबसे पहले तो हम 180 में से 76 माइनस कर देते हैं, सो वी विल गेट 104 डिवाइडेड बाय 2 विल बी इक्वल्स टू 52। सो h की जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इट विल बी 52 एंड दिस विल बी 52। सो g जो फाइंड आउट करना था हमें, इट इज इक्वल टू 76 डिग्रीज एंड h इज इक्वल टू 52 डिग्री। सो इस तरह से हमारे पास ये दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज आ गई। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 13 में भी हमारे पास AC इज ए डायमीटर एंड OA एंड OB ये दोनों जो है हमारे पास रेडियस ऑफ द सर्कल हैं। सो वी नो दैट ये दोनों रेडियस जो है वो आपस में बराबर होंगे। और इसी तरह से इस एंगल 42 को अगर हम देखें, सो दिस एंगल 42 इज फॉर्म्ड विद द एंड पॉइंट्स A एंड B। सो दिस 42 इज इक्वल्स टू ACB एंड इस सेगमेंटल एंगल का जो सेंट्रल एंगल फॉर्म होगा इट विल बी इक्वल टू AOB। सो वी नो दैट कि जो एंगल्स हैं इनके दरमियान रिलेशन दैट इज सेंट्रल एंगल इक्वल्स टू डबल ऑफ द सेगमेंटल एंगल। तो यहाँ जो सेंटर में हमारा एंगल फॉर्म होगा इट विल बी इक्वल टू डबल ऑफ 42। अगर यहाँ 42 है सो दिस विल बी इक्वल टू 84। सो इस 84 की मदद से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो दीज टू आर द रेडियस ऑफ द सर्कल। दिस मींस कि यहाँ एंगल जो फॉर्म होगा दिस विल आल्सो बी इक्वल टू x। सो अगर हमें x मालूम करना है सो 84 प्लस x विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 180 में से अगर हम 84 को सब्ट्रैक्ट करें तो बाकी जो रिमेनिंग टू एंगल्स हैं 96 आ जाते हैं और उसका हाफ करेंगे तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x दैट इज इक्वल टू 48 डिग्री। सो जो वेरिएबल हमें फाइंड करना था द आंसर इज 48। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 14। इस क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास एक वेरिएबल मौजूद है y जिसे हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सो y फाइंड आउट करने के लिए पहले कुछ इस तरह से देखते हैं कि दी OC और OB ये दोनों हमारे पास रेडियस ऑफ द सर्कल है। वी नो दैट रेडियस इक्वल होते हैं, तो दिस मीन्स दैट कि यहाँ जो एंगल फॉर्म होगा वो भी 58 के बराबर होगा। सो इसका अगर हम ये एंगल फाइंड आउट करें जो कि सेंट्रल एंगल कहलाएगा, सो 180 में से 58 को माइनस करते हैं। 58 टाइम्स 2 सब्ट्रैक्टेड बाय 180। सो सेंट्रल एंगल जो हमारा फॉर्म होगा यहाँ पे इट विल बी इक्वल टू 64 एंड ये जो एंगल है 64 इट इज फॉर्म बिटवीन द एंड पॉइंट CB। कॉर्ड के जो एंड पॉइंट है CB से फॉर्म हो रहा है। सिमिलरली द y इज फॉर्म विद द सेम एंड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड जो कि सेगमेंटल एंगल होगा इस सेंट्रल एंगल का। सो y विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ द 64 दैट विल बी इक्वल टू 32। सो y हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 32 डिग्रीज। क्वेश्चन नंबर 15 को सिमिलर वे में सॉल्व करते हैं। सो इन दिस क्वेश्चन लेट्स से AB इज आवर कॉर्ड और AB कॉर्ड की मदद से सेंट्रल एंगल इज फॉर्म इज x प्लस 22 एंड द सेगमेंटल एंगल इज इक्वल टू x। सो वी नो दैट कि जो सेंट्रल एंगल है x प्लस 22 ये इक्वल होगा 2 टाइम्स द एंगल फॉर्म इन द सेगमेंट। सो ये वाला एंगल जो है वो सेगमेंटल एंगल है, जबकि यहाँ जो एंगल फॉर्म हो रहा है इट इज द सेंट्रल एंगल। सो इस x को वहाँ ले जाके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो सिंपली द वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल टू 22। सो दिस इज आवर राइट आंसर। सेम कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए क्वेश्चन नंबर 16 में हम वैल्यू ऑफ x और a मालूम करते हैं। सो सबसे पहले a मालूम करने के लिए हम यहाँ पे इनको पॉइंट्स को मार्क कर देते हैं। लेट्स से दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c एंड दिस इज d।
सो ए बी सी डी में हमें सबसे पहले तो अगर ए मालूम करना है तो हम यहाँ रेडियस मार्क करते हैं कि ओ ए एंड ओ बी ये दोनों रेडियस हैं, तो दिस मीन्स दैट दिस एंगल ए विल ऑल्सो बी है इक्वल्स टू एंगल ए। सो ए मालूम, और यहाँ जो थर्ड एंगल है दैट इज ट्राइंगल का जो थर्ड एंगल 108, सो 180 में से अगर हम 108 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास इन दोनों ए की वैल्यूज आ जाएंगी 180 माइनस 108, सो द रिजल्ट इज 72। सो इन दोनों एंगल ए का जो सम है वो 72 है, देन हाफ ऑफ दिस विल बी इक्वल टू 36। तो यहाँ जो एंगल फॉर्म हो रहा है इट इज 36 डिग्री, और यहाँ पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है इट इज 36 डिग्री। तो इन दिस वे द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 36। सो नेक्स्ट एंगल x मालूम करना है हमें। सो इस एंगल x के लिए लेट्स से वी हैव अ कॉर्ड BC। सो अगर हम BC कॉर्ड को कंसिडर करते हैं, सो वी हैव एंगल A जो कि यहाँ फॉर्म हो रहा है, जिसको हम सिंबॉलिकली इस तरह से लिख सकते हैं एंगल BAC। सिमिलरली एक और एंगल जो यहाँ एंगल D पे फॉर्म हो रहा है, इसे भी सिंबॉलिकली हम लिख सकते हैं BDC। सो एज वी कैन सी इन दोनों एंगल के जो एंड पॉइंट्स हैं वो कॉर्ड के एंड पॉइंट BC के बराबर है, इट्स मीन ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे। सो एंगल A जो है वो एंगल X के बराबर है, सो वैल्यू ऑफ X विल बी इक्वल टू 36 डिग्रीज।